गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एंड वेलकम ऑल ऑफ यू. टुडे we are going to start your second chapter, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resource. In this chapter we will read one by one land, importance of soil, importance of water in our life, natural vegetation, that how can it affect the human life, and wildlife resource. We have read in my, we have discussed in your previous chapter that was resource, where we read about resource, types of resource, category of resource, and conservation of resource. Where we read also a story about Raju and Mona. They were very curious to know about that, what is resource, how makes resource, and this type of others questions arise by them to her mother, and her mother answered him. And one by one we have read all the topics: sustainable development, this is very important to know about that resource is the very precious gift of God, which is given by us without any cost. We have to always conserve it in proper manner. We never misuse them. So today we also start your second chapter, class 8 SST geography, second chapter, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife sanctuaries. In this chapter we will read all these topics which is given in your headings and their importance. Your chapter start with two stories. One story, a girl, their name was Mamba, और देयर नेम इज़ माम्बा. वाज इज़ दोनों कह सकते हैं, चाहे कहानी को था में पढ़ें या है में पढ़ें, प्रेजेंट में या पास्ट में. ओके, देयर नेम वाज माम्बा हु लिव्ड इन स्मॉल विलेज तंजानिया इन अफ्रीकी कॉन्टिनेंट्स. देयर लाइफ स्टाइल इज़ वेरी डिफिकल्ट. He awake early in the morning and for the search of water he have to went there very long distance to carry the water. दूर से उसे पानी लाने जाना पड़ता था. फिर तंजानिया के छोटे गांव में जो माम्बा नामक एक लड़की रहती थी, पानी लाने के लिए उसे प्रातः शीघ्र उठती थी, जल्दी से जल्दी उठ जाती थी, अर्ली इन द मॉर्निंग. और फिर उसे बहुत दूर जाकर कुछ घंटों के बाद जब वो लौटती थी पानी लेकर के, उसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती, मम्मी के साथ घर में काम करती और फिर भाइयों के साथ बकरियों की देखभाल करती, अपने कैटल्स की, अपने गोट्स की. उसके पूरे परिवार के पास एक छोटी सी झोपड़ी और चट्टानी भूमि का एक छोटा सा हिस्सा था. माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम उगा लेते थे. फिर भी उसके बाद परिवार के साल भर जो वो काम करते थे उससे पूरी फैमिली को साल भर खाना ठीक ढंग से प्राप्त नहीं हो पाता था. इन स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन मॉर्निंग for fetch water. She has to walk a long way and return after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. All her family owns is a pieces of rocky land around their small hut.
Mamba's father can barley grows some maize and beans on it. After toiling hard, this is not enjoy to feed their family for the whole year. What I am saying, that author want to inform you that Mambas and their parents' life was very difficult. Her fathers had some small part of the rocky land where he tilled the field and sown such type of seeds like barley and maize. थोड़ा बहुत सेम भी उगा लेते थे. ठीक ऐसे ही दूसरी कहानी जो पीटर की है. पीटर लिव इन द हार्ट ऑफ द sheep rearing region in New Zealand, where his family run a wool processing factory. पीटर न्यूजीलैंड में रहता था. न्यूजीलैंड ऊन उत्पादन, भेड़ों से ऊन उत्पादन में फेमस है. न्यूजीलैंड इज अ फेमस in the wool production in worldwide level. Peter lived in New Zealand. Their main work, their family's main work, what? Their family runs a wool processing factory. Their main work was to wool processing, ऊन निकालना, उनके लिए व्यवस्था करना, ये उनकी मेन ऑक्यूपेशन में था. पीटर स्कूल से आता था, वापस लौटता था डेली, फिर वो काम पे चला जाता था. पीटर और उसके चाचा अपनी भेड़ों को देखभाल करते थे. उनका भेड़ों का एक छोटा सा घर था, दरबा था, जो थोड़ी दूरी पे बना था उसके घर से, और एक विस्तृत घास के मैदान के नजदीक था. यहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधियों में उनका प्रबंध किया जाता. बालों उनसे भेड़ों से ऊन निकालने के लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे. जहाँ भेड़ें रहती थी उनके घर से उसकी थोड़ी दूरी पे थे उनका घर, भेड़ों का दरबा, जहाँ पे अपने चाचा के साथ वो कुछ नए साइंटिफिक मेथड के आधार पे बालों को निकालता था, और निकाल के फिर उसे वूल प्रोसेसिंग और फिर फैक्ट्री में उसको भेज देता था. पीटर का परिवार, पीटर की फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. जैविक खेती के थ्रू कुछ फसल और सब्जियां भी उगा लेता था. ये पीटर की लाइफ थी. पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Everybody when he returns from school, every day when he returns from school, Peter watch his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in the scientific way using the last technology. Peters finally also grew vegetables through organic farming. I have already informed you bilingual Hindi and English. Here we have read two stories. First Mamba who lived in Tanzania, Africa, and second Peter who lived in where? New Zealand. दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं. Mamba and Peter stay in two different parts of the world and live very different life. This difference is because of the difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animal, and uses of technology. The availability of resource is the main reason place differ from each other. It means both story connect you to the land, soil, water, natural vegetation and wildlife resource points, topics
With the help of two story, you can easily understand the importance and meaning of these. Author want to inform you that though the two story which we read, Peter and Mamba, their lifestyle is different because of land, quality of soil, natural vegetation, water, usage of technology, and availability of the resource also. So that's why we have to start the first land. I think everyone familiar with the land. Land, what is the meaning of land? Yes, land is among the most important natural resource. It covers only about 30% of the total area of the earth's surface, and all part of this small percentage are not habitable. Suppose if you will consider about that the division of the water and land on earth, then you find it is very strangely, interestingly, what that the portion of earth that is larger than water, which cover the whole land, 29 point something, अगर आप राउंड फिगर में बात करें तो 30% के आसपास ज़मीन का हिस्सा है पूरी धरती पे, और बाकी 70% पानी से घिरा हुआ है। पानी से घिरा हुआ यह भाग और 30% ये जो ज़मीन का हिस्सा है, इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। दे हैव specific quality, both land as well as water. But here also very strange matter that what we have as a land part, 30% part, it was all not habited. एक छोटे एरिया पे हमारा जीवन रहता है, हम उस पे जीवन जीते हैं। कहते हैं the main uneven distribution of population in different part of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low lying area susceptible to water, logging deserts area, thick forest area are normally sparsely populated or uninhabited plains and river valley offer suitable land for the agriculture. Hence, these are the densely population area of the world. Okay, my dear student, if you minutely observe about that the population and their distribution, then you find out that some countries have a very vast population, like India, like China, but some countries have very less population, like Australia, like South Africa, like African continent's country, like the South American continents also. Why? Because of their topography, because of their land morphology, because of their feature. Somewhere dense forest, somewhere deserted land, somewhere waters, and somewhere the mountain regions, mountain slopes. Due to that, they were facing or they are facing that problem, that they have no dense population, but in India, but in China, but in Indonesia, but in Pakistan also, but Bangladesh, they have plenty regions. Their climate is in favor of the population, so that's why these areas are the fully dense. So that's why I am saying
कि जो ज़मीन है, लैंड है, भूमि है, इसकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। लैंड और क्लाइमेट, लैंड और उस पार्ट्स में स्पेशली जो जलवायु है उसका पॉपुलेशन पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। पॉपुलेशन के साथ साथ वहाँ पे काम करने की एक्टिविटीज़, जो व्यक्ति जो काम करे उनके ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। भूमि और जलवायु भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। कहीं उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, पर्वत के तीव्र ढाल है, कहीं पानी से भरा हुआ क्षेत्र है, तो कहीं निम्न क्षेत्र बने हुए हैं। और इसीलिए हमें जो लैंड मार्फोलॉजी दिखती है वो कहीं मरुस्थल, कहीं निर्जन, कहीं उर्वर मैदान, कहीं अनुर्वर मैदान, कहीं घाटियाँ, कहीं नदी के कछारे। इस तरह कृषि के लिए उपयुक्त ये भूमि उपलब्ध है। जो उर्वर मैदान नदी घाटियों में है वहाँ तो खेती हो जाती है, कृषि हो जाती है, लेकिन जो ज़मीन नदियों की घाटियों में नहीं है वहाँ पे खेती करना बहुत मुश्किल है। प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर, बट द माउंटेन्स, बट द डिजर्टेड लैंड, बट द स्लोपी माउंटेन्स एरिया, it was not in favor of the agriculture. These are the quality, these are the what the differentiation between the fertile land and unfertile lands. I am telling about that feature of the land. I am telling about the various type of land. We are going to read next topic, land use, where we see दैट कि कैसे लैंड का उपयोग हो रहा है, लैंड की लोग उसकी खेती कर रहे हैं। लैंड यूज, नेक्स्ट टॉपिक इज योर लैंड यूज। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज. This is commonly termed as the land use. Can you list out the different way in which Mambas and Peter's family use their land? Or even you can also make a list which you have seen around with you. आपके आसपास के जो क्षेत्रों में ज़मीन के जो उपयोग है उनके आधार पे आप भी लिस्ट बना सकते हैं। और क्या देखिए कि सारे ज़मीन का प्रयोग एक ही तरह से हो रहा है। क्या खेती के लिए सारी ज़मीनें हैं? क्या लोगों ने उस पर घर बनवा लिए? क्या उस पर पास्टोरलिस्ट इंडस्ट्री मतलब पशुपालन किया जा रहा है? कुछ चरागाह की भूमि है, कुछ मैदान होंगे, तो इनकी लिस्ट बनाइए। आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये लैंड यूज़ का क्या मतलब है। What is the meaning of land use? Commonly we can say different parts में different काम के लिए जो लैंड का यूज किया जाता है उसे कॉमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं दैट इज लैंड यूज। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग फॉरेस्ट्री करते हैं, कुछ लोग माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग बिल्डिंग हाउसेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज, कुछ लोग अपने उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं। दिस कॉमनली टर्म्स एज ए लैंड यूज। द यूज ऑफ लैंड is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals, and availability of water. Human factors such as the population and technology are also important determinants of land use pattern. कह रहा है सीधे सीधे कि जब आप बात करेंगे
आप देखेंगे तो भूमि का उपयोग किस चीज़ पे डिपेंड है, लैंड का यूज किस चीज़ पे है। द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। किसी भी ज़मीन का इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे, प्रयोग तभी कर पाएंगे जब उसके फिजिकल फैक्टर्स आपके अनुकूल हों। ऐसा नहीं है कि आप मरुस्थल में जाके घर बनवा लेंगे या खेती कर लेंगे, है ऐसा नहीं। सुनने में ही विचित्र लगता है ना, मरुस्थल में जाके खेती कैसे होगी, या पर्वतों की ढालों पे खेती कैसे करें। हाँ, पर्वतों की ढालों पे खेती हो सकती है, लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सारे फसल नहीं उगा सकते। वी कैन सोन लाइक टी, लाइक कोको, लाइक कॉफ़ी, कहवा एंड सम अदर फॉरेस्ट्री। हम वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते, लेकिन उस पर हम प्लेनी रीजन, राइस, बर्ली और वीट, इस तरह की फसल हम वहाँ पे नहीं उगा सकते। और ये अपने में एक समझने वाली बात है आपको, आपके लिए। आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। ऑथर यही आपको बताना चाहता है। ऑथर वांट टू इन्फॉर्म यू दैट द यूज ऑफ लैंड इट is based on physical factors. What is the physical factors? Physical factor like topography. And you ask me what is the meaning of topography? The topography, it means in the easy language, if I want to tell you the meaning of topography is the स्थलाकृति, जमीन कैसा है, लैंड की बनावट कैसी है, दैट इज टोपोग्राफी। सेकेंड, सॉइल, आई थिंक यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल। थर्ड, क्लाइमेट। फोर्थ, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। पानी की सुविधा हो, सड़क हो, जलवायु अच्छी हो, मिट्टी ठीक हो, वहाँ पे खाद्यान्न मिले, कुछ मिनरल्स मिले, खनिज संसाधन मिले, रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, तो ऐसे क्षेत्र, इन चित्रों के आधार पे लैंड का यूज प्रॉपरली किया जाता है। आपके सामने एक टेबल है, आपके सामने दो पिक्चर है। एक 2.1 फिगर को देखिए। 2.1 फिगर में आपको एक स्विट्जरलैंड का आपको क्या दिख रहा है, सेल्जबर्ग इन ऑस्ट्रिया, सिटी, ऑस्ट्रिया की एक सिटी है सेल्जबर्ग वहाँ की। नोटिस इन हाउ मेनी वेज दैट लैंड हैज़ बीन यूज्ड इन द एव पिक्चर। आप ज़मीन को देखिए और आप देखिए कैसे उसका पिक्चर में लोगों ने ज़मीन का इस्तेमाल किया है। आपको दिख रहा है एक डेंस पॉपुलेटेड एरिया, घर बने हुए हैं, फिर आपको एग्रीकल्चर लैंड भी दिख रहा है, फिर आपको फॉरेस्ट भी दिखाई दे रहा है, एक रिवर भी दिख रही है। डेंस फॉरेस्ट में आपको देखिए साउदर्न, साउथ वेस्ट की तरफ आपको फॉरेस्ट दिखेगा। आपको नॉर्थ, सेंट्रल नॉर्थ में आप एक रिवर दिख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको पूरा एग्रीकल्चर लैंड दिख रही है, जबकि नॉर्थ वेस्ट में डेंस पॉपुलेटेड एरिया दिख रही है। तो मतलब एक जगह पे आपको इतनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके आधार पे आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस तरीके से इनका डिवाइडेशन हुआ। अब आप दूसरे 2.1 के बाद आप देखिए 2.1 लैंड यूज इन सेलेक्टेड कंट्रीज। अब आप लैंड को देखिए, इनका इस्तेमाल कैसे किया। ऑस्ट्रेलिया में अब कंट्रीज़ के नाम हैं, देख लीजिए, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जापान, रशिया, यूके एंड यूएस। इन ऑस्ट्रेलिया, इफ यू will see this, then you find that land divided into various parts. The cropland, first category, second category is pasture, third category is forest, and fourth category is other use. Cropland, it means agriculture land. It means that land which is involved in
agriculture, farming, peasantry activities. And second, pasture. Pasture, it means where the people what involve himself in pasture. आप वहाँ पे पशु पालते हैं, पशुपालन उद्योग, पशुओं को पाल के अपना इंडस्ट्री लगाना. थर्ड, फॉरेस्ट, जंगल कितने हैं. एंड फोर्थ, अदर यूज़. इन सब के अलावा अदर यूज़ की ज़मीन कितनी है. द परसेंटेज ऑफ एरिया इन क्रॉपलैंड, पास्चर, फॉरेस्ट एंड अदर यूज़. आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए 6, पास्चर लैंड 56, फॉरेस्ट 14, अदर यूज़ 24. लाइक इंडिया में देखिए क्रॉपलैंड 57, पास्चर 2%, 4%, फॉरेस्ट 22%, नाउ दैट टाइम 24.47%, and other use 17%. You can differentiate that where the cropland is in huge amount. India has a very vast land for the particular use for the farming. खेती के लिए काफ़ी बड़ी जमीन यूज की जा रही है. पूरी कैटेगरी को आप देखिए, जापान 12 to 67. फॉरेस्ट जापान में कितना है 67%. ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट इज इन जापान. टोटल एरिया ऑफ जापान वाज हाईली हाईली स्प्रेड फॉरेस्ट, द वेरी वास्ट लैंड 67% एंड 19% अदर यूज, 2% पास्चर एंड 12% क्रॉप लैंड. बहुत छोटा एरिया खेती के लिए है. पशुपालन 2% पे है, जंगल 67% पे है, 67% पे है. लाइक रसिया 8% क्रॉपलैंड है, 5% पास्चर है, 44% फॉरेस्ट है और 44% अदर यूज के लिए है. यूके 29% क्रॉपलैंड, 46% पास्चर, 10% फॉरेस्ट एंड 16% अदर यूज. चाइना 10% क्रॉपलैंड, 21% पास्चर, 27% फॉरेस्ट and 17% other use, 42% other use, 10, 34, 14 and 42. चाइना के पास हमसे कम ज़मीन पे खेती होती है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी हमसे अच्छी है, इसलिए वो हमसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं. पर हेक्टेयर प्रोडक्शन रेट इज़ हाई देन इंडिया. चाइना is rich in technology than us, than India. हमारे तुलना में, भारत की तुलना में चाइना के पास टेक्नोलॉजी अधिक है. उसके पास खेती की ज़मीन कम है, लेकिन फिर भी पर हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा करता है. नाउ दैट टाइम ही इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट राइस प्रोडक्ट. धान का उत्पादन सबसे अधिक करता है. चावल सबसे अधिक उसी क्या होता है. गेहूं का उत्पादन भी वो नंबर 1 पे आ चुका है. आप देख लीजिए ज़मीन की कितनी छोटी सी हिस्से उसके पास है, लेकिन फिर भी वो इतनी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है. अब इनके साथ आप देख सकते हैं आगे नेक्स्ट कहता है कि लैंड कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कमोडिटी लैंड. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड. लैंड डिवाइड, वी कैन डिवाइडेड लैंड इन 2 पार्ट. द बेसिक basis of private land and community land. Private land is owned by individuals, where or community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. These community lands are also called a common property resource. It means land we can divide into 2 parts. First, private land, and second, that is the community land. Private land, it means the ownership of land is in one hand, and the community land, it means the ownership of land is in various hand. And then the community land, they uses it in the various purpose, like what, like collection of fodder,
fruits, nuts, medicinal herbs, and these type of others. That is the division of land. ओके माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. हम नेक्स्ट फिर बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में. ओके, बाय एंड टेक केयर.